So I am sitting in my Tokyo apartment. I am a robotics engineer and I am from India. तो आज मैं इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आंसर करूँगा कम्प्लीटली. हाउ डिड आई गेट हेयर इन जापान, इन विच फील्ड आई एम बेसिकली वर्किंग इन, हाउ मच आई एम गेटिंग पेड हेयर एंड व्हाट इज़ माई जापानीज लैंग्वेज लेवल, what is the salary in countries like India, then Japan, then Europe or the US. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्किल्स रिक्वायर्स हैं बेसिकली टू गेट इनटू दिस फील्ड. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दैट वन स्किल दैट हेल्प मी टू गेट दिस जॉब. व्हाट आर द फील्ड्स इन रोबोटिक्स एंड एआई एंड व्हाट इज द एक्चुअल वर्क. हेलो एवरीवन, सो आई एम सिटिंग इन माय टोक्यो अपार्टमेंट. आई एम a robotics engineer and I am from India. And I did same question always whenever I open my LinkedIn or my YouTube comment section कि how did I get here in Japan, in which field I am basically working in, how much I am getting paid here and what is my Japanese language level. तो आज मैं इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आंसर करूँगा completely and on top of that I will also address a question that most of the career videos skip, is that what is the actual skill that helped me land in this job. And frankly speaking, it's not the CGPA, the percentage or the degrees. So stay till the end of the video and you will get the answer all of these questions. Okay, so आगे बढ़ने से पहले I would like to give you a background about myself. So I did my bachelor's in mechanical engineering from JC Bose University of Science and Technology, and after that I joined and completed my master's from IIT Jodhpur in robotics and mobility systems. And the main thing here is during my MTech I did not only do the coursework and the basic theories but I actually deployed systems. So मैंने अपनी MTech में काम किया एक प्रोजेक्ट पे जो कि रिलेटेड था ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट से, दैट आई हैव टू डिप्लॉय अ साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग एल्गोरिदम टू दैट सिस्टम. सो इट रियली हेल्प मी लर्न अ लॉट. After that 2 years down the line I got placed to a company named Swaya Robotics in Hyderabad. So वहाँ पे मैंने Dexterous manipulation में काम किया and I used to work with 6 degree of freedom robot, 7 degree of freedom, 17 degree of freedom humanoid kind of robot. वहाँ पे मैंने सीखा आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं, how to make your own motion planner, how to make your path planner, trajectory planner, IK solver. And on top of that I also learned कि vision system कैसे बनाते हैं, vision system and motion planner को कैसे integrate करके we make our physical AI robot to move. So that is one of the skill that I gained that helped me to get where I am. And after working around 1.5 years there in Hyderabad, I got offer from this company in Japan where I am working again in dexterous manipulation in retail automation. So by the end of this video, I am going to answer all of these, that what are the fields in robotics and AI and what is the actual work. How many types of visas are there to specifically get into Japan, then what is the salary in countries like India, then Japan, then Europe or the US. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्किल्स रिक्वायर्स हैं बेसिकली टू गेट इनटू दिस फील्ड. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दैट वन स्किल दैट हेल्प मी टू गेट दिस जॉब. So this video is going to be very interesting. So let's start with the fields that are there in robotics and AI. तो यार स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोबोटिक्स में कौन कौन से रोल्स हैं, बिकॉज समझ नहीं आता इतने सारे रोल्स हैं. लेट मी बेसिकली क्लासीफाई द रोल्स इन रोबोटिक्स एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. तो इंडस्ट्री में दो तरह के रोल होते हैं बेसिकली, रोबोटिक सॉफ्टवेयर एंड रोबोटिक्स हार्डवेयर. नाउ अंडर रोबोटिक सॉफ्टवेयर अम्ब्रेला देयर आर 4 to 5 क्लासिफिकेशन. वन इज अ मोशन प्लानिंग इंजीनियर. मोशन प्लानिंग के अंडर आता है पाथ प्लानिंग, ट्रेजेक्ट्री प्लानिंग, इनवर्स काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एटसेट्रा सारा. देन सेकंड इज कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन में आते हैं आपके सारे एल्गोरिथम्स लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, ट्रांसफॉर्मर्स, LLMs का डिप्लॉयमेंट जितना भी है दैट कम्स अंडर कंप्यूटर विजन. देन स्लैम एंड नेविगेशन. स्लैम एंड नेविगेशन एंड कंप्यूटर विजन आर अ लिटिल ओवरलैप्ड, बट स्लैम एंड नेविगेशन में आते हैं बेसिकली अप्लाइंग द स्लैम्स एंड नेविगेशन एल्गोरिथम्स लाइक वी स्लैम्स, RT स्लैम एटसेट्रा, एंड नेविगेशन करना रोबोट का इन एनी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट. देन द नेक्स्ट इज RL एंड फाउंडेशनल मॉडल. इसमें आते हैं बेसिकली जो भी हमारे VLAs मॉडल्स हैं उसमें रिसर्च, वर्ल्ड मॉडल्स हैं उनका रिसर्च करके इम्प्लीमेंटेशन करना. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फर्मवेयर एंड कंट्रोल्स. तो इसमें लो लेवल का सारा ड्राइवर कम्युनिकेशन, कंट्रोल्स, लो लेवल ड्राइवर कंट्रोल, तो ये सब आते हैं इसमें फर्मवेयर एंड कंट्रोल. तो ये हो गया हमारा रोबोटिक सॉफ्टवेयर. देन कम्स द रोबोटिक्स हार्डवेयर. इसमें मेजरली 3 क्लासिफिकेशंस हैं. सो वन इज द मैकेनिकल लाइक कैड डिज़ाइन एंड मैकेनिकल और एनालिसिस. तो इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर डिज़ाइन आता है, एनालिसिस ऑफ दैट स्ट्रक्चर, कितना लोड ले पाएगा एटसेट्रा. देन आता है इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर. इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर में कौन सा बोर्ड लेना है, कैसे PCB डिज़ाइन करना है, वायर हार्नेसिंग कैसे करनी है एटसेट्रा, ये सब आता है. देन थर्ड इज अ सिस्टम इंटीग्रेटर.
इंटीग्रेटर। सिस्टम इंटीग्रेटर बेसिकली उसको थोड़ा हार्डवेयर का नॉलेज होता है, थोड़ा सॉफ्टवेयर का नॉलेज होता है, दैट सिट्स बिटवीन दीज टू टीम्स। तो सिस्टम इंटीग्रेटर्स को दोनों का नॉलेज होता है एंड सिस्टम इंटीग्रेटर्स की बहुत वैल्यू होती है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर सिस्टम इंटीग्रेटर्स। So this is the broader classification in the robotics field. Okay, so now many people will ask why Japan? So first of all, Japan has the highest robot density per worker in the entire earth. Yes. The second is the precision here. तो जापान में सब लोग प्रिसीजन को बहुत फॉलो करते हैं। अगर आपका रोबोट चल रहा है तो इट इज़ गुड टू गो, अगर 1% भी नहीं चल रहा तो इट इज़ नॉट गुड टू गो। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द सेफ्टी एंड द प्रिसीजन। नंबर थर्ड, हार्डवेयर एक्सेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवेयर एक्सेस है। अगर आप मेरा चैनल भी देखोगे तो कितनी सारी वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं ओपन रोबोट्स पे, जो रियली ऐसे अवेलेबल हैं लोगों को देखने के लिए। इवन इन्होंने म्यूजियम ओपन कर रखा है रोबोट्स दिखाने के लिए। सो हार्डवेयर एक्सेस इज़ वेरी गुड इन जापान। द फोर्थ, लैंग्वेज। तो सम पीपल थिंक कि लैंग्वेज का बैरियर होता है। नहीं, मेरे को जैपनीज बिल्कुल भी नहीं आती। जब मैं बेसिकली यहाँ पे आया था, आई हैव नो लेवल N5 नथिंग। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे ही मैं यहाँ पे आ गया। एज आई टोल्ड यू, कंपनीज आर हायरिंग फॉर इंग्लिश स्पीकिंग रोल्स। देयर आर मेनी रोबोटिक्स कंपनी जिनको स्किल्ड लोग चाहिए एंड इफ दे आर स्पीकिंग इंग्लिश इट्स फाइन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट वीजा। सो वीजाज में बेसिकली यू हैव 3 ऑप्शंस। तो इसमें पहला होता है इंजीनियर स्पेशलिस्ट वीजा। If you get an offer from Japanese company, you have a good degree and company is offering for visa, तो वो आपको इंजीनियर वीज़ा मिलता है। वो 1 साल का होता है, you are good to go। एंड इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है एंड इट इज़ टाइप। बेसिकली जब आप कंपनी स्विच करते हो तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है नॉर्मली। नाउ सेकंड इज HSP, हाईली स्किल प्रोफेशनल वीज़ा। अब हाईली स्किल प्रोफेशनल वीज़ा की कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपके पास एक सर्टेन डिग्री होनी चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर आपका पैकेज होना चाहिए जापान में, एंड कंपनी आपका स्पॉन्सर करनी चाहिए। तो आपको HSP वीज़ा मिलता है जो कि 5 साल का होता है। नाउ ये जो होता है ये एक कंपनी से टाई होता है। तो मेरा HSP वीज़ा है, तो जब ये पासपोर्ट में वीज़ा लगता है तो इसमें कंपनी का नाम भी लिखा रहता है। तो जब मैं अपनी कंपनी स्विच कराऊंगा तो मेरे को वो वीज़ा का पेज चेंज कराना पड़ेगा विद माई न्यू कंपनी। नाउ थर्ड इज अ स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा जो होता है वो बच्चे यहाँ पे आते हैं, दे स्टडी इन द यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडी वो उसको इंजीनियर्स वीज़ा में कन्वर्ट करा लेते हैं वंस दे हैव अ जॉब ऑफर। सो दीज आर द वीज़ा ऑप्शंस यू हैव। ओके, सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ टू गेट हियर इन जापान। तो यहाँ पे आने के बेसिकली 4 तरीके हैं। सबसे पहला होता है लिंक्डइन से अप्लाई करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। लिंक्डइन से आप बेसिकली डायरेक्ट कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप थर्ड पार्टी एचआर के थ्रू भी जा सकते हो। सो बेसिकली जो मेरा रिक्रूटमेंट था वो थर्ड पार्टी एचआर के थ्रू हुआ था। थर्ड पार्टी एचआर कॉन्टेक्टेड मी एंड उनके थ्रू मैं आया था। एंड कुछ डायरेक्ट रोल्स होते हैं, डायरेक्ट ओपन होता है, आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिंक्डइन पे अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाओ। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि हाउ टू मेक अ गुड प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन क्लाउड का यूज़ करके। अगर आप वो सब देख सकते हो, अगर आपको फिर भी इस पे वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना कि आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल जो डिस्क्रिप्शन में है उसको एक बार देख लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बेसिकली इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला हो गया लिंक्डइन। सेकंड होता है कि डायरेक्टली जॉब रिक्रूटमेंट पोर्टल्स पे जाना, लाइक recruit.jp, वांटेडली, ऐसे कुछ जैपनीज पोर्टल्स हैं जिसमें आप सीधे जाके कर सकते हो, जिसमें आप चेक करो कि इंग्लिश स्पीकिंग रोल है या नहीं है। अगर आपको जैपनीज नहीं आती, अगर आपको जैपनीज आती है वेल एंड गुड, अगर आपको इंग्लिश आती है तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होता है इंग्लिश ओके या इंग्लिश स्पीकिंग रोल, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो ये हो गया सेकंड मेथड। नाउ थर्ड मेथड इज़ कि ऑब्वियसली आप एज अ स्टूडेंट आए एंड आपने प्लेसमेंट वगैरह लिया और आप फिर चले गए। बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा से आपने इंजीनियर वीज़ा में कन्वर्ट करा लिया। दैट्स द थर्ड ऑप्शन। तो थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज स्टूडेंट के लिए अब आई थिंक N2 या N3 लेवल कंपलसरी कर दिया। नाउ फोर्थ इज़ आप इंडिया में ही किसी जैपनीज कंपनी में काम करो एंड वहाँ से ट्रांसफर लेके यू कैन कम टू जापान। दैट इज़ द फोर्थ ऑप्शन। सो आई वुड से जो लिंक्डइन वाला ऑप्शन है दैट्स द बेस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे यहाँ पे रिक्रूटर्स हैं बिकॉज कंपनी डोंट लाइक टू रिक्रूट देमसेल्व्स स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स। तो वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एचआर को दे देते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। आई ऑल्सो नो सम ऑफ द थर्ड पार्टी एचआर्स, मैं आपको कनेक्ट भी करवा सकता हूँ सर, उनके साथ एक मीटिंग करके एक वीडियो भी बना सकता हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको वैसा कुछ चाहिए तो। ओके यार, सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके लिए आप मैक्सिमम व्यू आए होगे, सैलरीज। क्या सैलरीज मिलती हैं रोबोटिक्स इंजीनियर को। सो लेट्स स्टार्ट यार कि रोबोटिक्स इंजीनियर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा फ्रेशर की। आप जस्ट फ्रेशर हो, सपोज यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ टायर 1 कॉलेज और आपके पास मास्टर्स डिग्री है, सो यू विल गेट अ गुड पैकेज। सो इट कैन रेंज फ्रॉम 18 to 15 LPA, दैट इज़ अ बेस पैकेज। तो मैं ये सारे बेस पैकेजेस की बात करूंगा। लेकिन अगर आप टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस से हो या आपके पास सिर्फ बैचलर्स है, इट इज़ लो, समटाइम्स 5 LPA भी होता है, 6 LPA भी होता है, बट ऑन अ गुड कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ इट्स 8 to 15 LPA जो कंपनीज पे करती हैं। नाउ जापान में कितना है वो नंबर। सो इन जापान इट्स समवेयर अराउंड 4 to 6 million येन, दैट्स इट समवेयर अराउंड 25 to 35 LPA। बट अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जापान इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, इट्स ऑलमोस्ट 2 times एक्सपेंसिव देन मुंबई और बैंगलोर, दैट इज़ द टॉप टायर सिटीज़ इन इंडिया। तो आप वो भी कंसिडर करना।
देन द थर्ड इज अराउंड USA एंड यूरोप, वहाँ पे कितनी सैलरी होती है, तो इट स्टार्ट समवेयर अराउंड $70,000 एंड गोज अप टू लाइक 110 और $120,000, दैट इज इन इंडियन करेंसी इज 65 LPA टू अराउंड 1 CR, तो इसके बीच में होता है। बट अगेन यूरोप में टैक्सेस बहुत हाई होते हैं, US में लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, इवन यूरोप में भी, तो वो सारे फैक्टर्स भी आप कंसीडर करना, सिर्फ सैलरीज मत देखना। नाउ सेकंड, अब हम देखते हैं कि आफ्टर 2 to 3 years डाउन द लाइन आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया तो इंडिया में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 15 to 22 LPA ऑफ बेस पैकेज। इन जापान यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 6 to 10 million yen, दैट विल सिट अराउंड 35 to 60 LPA. Then in US and Europe it would be somewhere around 120 to maybe 180K or 160K. In Indian currency that will be 1 to 1.5 CR. तो ये हो गया रोबोटिक्स की सैलरी। अभी मैं आपको एक ट्रूथ बताता हूँ कि रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर रोल्स में सैलरी थोड़ी सी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू रोबोटिक्स हार्डवेयर रोल, जो मैंने आपको पहले क्लासीफाई किया था। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। अब डिफरेंस मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट सॉफ्टवेयर इज़ अ हाई पेइंग रोल ऑलवेज, मतलब ये तो आपको पता ही है। आई थिंक नाउ यू आर हैप्पी, यू नो द सैलरी एंड दीज आर सैलरीज इन गुड कंडीशन। अभी ऐसा भी हो सकता है कि इन इंडिया आपको 2 साल के बाद हो सकता है 12 LPA 13 LPA मिल रहा हो, नो वरीज, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ गुड कंडीशन। अगर आपका सब सही चल रहा है, यू हैव अ गुड स्किल, यू हैव अ गुड डिग्री, योर पाथ इज गोइंग गुड, तो आप 15 to 22 अर्न कर सकते हो। ओके, सो यार बिफोर क्लोजिंग आई वुड लाइक टू टेल यू द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू गेट अ गुड जॉब स्पेसिफिकली इन द रोबोटिक्स फील्ड। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डेप्थ। आप किसी भी उसमें चले जाओ, आपके लिए डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी टेल यू माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इन माय इंटरव्यू दे एक्चुअली आस्क्ड मी अबाउट द आर्किटेक्चर डिज़ाइन। उन्होंने बेसिकली मेरे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड दिखाए एंड आई हैव टू एक्सप्लेन देम द आर्किटेक्चर्स। देन वो मोशन प्लानर्स के डेप्थ में गए, देन वो विजन के डेप्थ में गए, तो मेरे को वो इन डेप्थ जाके एक्सप्लेन करना था कि कैसे करना है। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉर फुल स्टैक रोबोटिक्स की हम सब कुछ कर लेते हैं, दैट्स फाइन, आई ऑल्सो ट्राई टू डू दैट, बट कुछ ऐसी फील्ड होनी चाहिए जहाँ पे आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। लाइक अगर आप मोशन प्लानर बना रहे हो तो आपको प्रॉपर एक RRT स्टार के साथ ट्रैजेक्टरी प्लानर, पाथ प्लानर बना के पूरा एक रोबोट को वर्क कराना है आर्किटेक्चरली गुड कोड के अंदर। ना अगर आप कंप्यूटर विजन कर रहे हो तो आप प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के एल्गोरिदम बनाओ, उसको मोशन प्लानर के साथ फिट करो एंड एक आर्किटेक्चर में रन करो। सिमिलरली स्लैम है, कार्टोग्राफर स्लैम है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि नेविगेशन टू स्टैक उठाया करके रन कर दिया, मूव उठाया चला के रन कर दिया, नो, आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है। एंड अगर मैं nav2 हटा दूं, क्या आप तब भी नेविगेशन कर सकते हो? मैं मूव टू हटा दूं, क्या आप तब भी मोशन प्लानिंग कर सकते हो? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन द डेप्थ रेदर देन ब्रेथ। सो देयर लाइक आई वुड लाइक टू गिव यू अ सेंटेंस कि आपका एक गिटहब का प्रोजेक्ट आपको एक जॉब दिलवा सकता है रेदर देन योर कंप्लीट डिग्री और रेदर देन योर CGPAs और परसेंटेजेस। सिर्फ एक गिटहब का प्रोजेक्ट, एक गुड रिज्यूमे, एक गुड लिंक्डइन प्रोफाइल, आपको अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट भी करना है उसके बाद। दीज आर द स्किल्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू गेट अ जॉब। ओके, सो ऑनेस्ट समरी यार, so Japan is not the highest salary country available for engineers, but it's one of the deepest hardware architectures available. सो अगर आप जापान आओगे या कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाओगे तो वी विल सी कि कटिंग एज रिसर्च का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। डीप हार्डवेयर आपको इजीली मिल जाएगा बहुत, लाइक यू कैन ऑल्सो सी इन माई वीडियोज़। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ दीज कंट्रीज। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट इट डजेंट मैटर यार, द स्किल्स मैटर, द डेप्थ ऑफ कंसेप्ट मैटर्स, कि आपको डेप्थ में स्किल्स कितनी आती हैं वो बहुत मैटर करती हैं, चाहे आप इंडिया में रहो चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ। सो आई वुड से जस्ट फोकस ऑन डेप्थ। एंड एट लास्ट बिफोर गोइंग आई वुड से कि इट्स नॉट माई IIT डिग्री और माई परसेंटेजेस और माई CGPA और only my experience that gave me this job, is my in-depth deployments that I did. What I learned from my in-depth deployments actually helped me a lot in getting this job. So I would like you to focus on that. Now on that note यार, I just want to say कि अगर आपको ये सारी skills build करनी है जिनकी मैंने अभी बात करी है, so you can definitely visit my channel. I usually post videos like how to implement these skills, and I have also made a video on making a proper roadmap for robotics, जिसको मैं यहाँ पे mention कर दूंगा. You can go there. And next plan is I am working on 2 courses. One is a basic academic course and one is a professional robotics course. तो आप कमेंट डाउन करना आपके जो भी थॉट्स हैं, आप जो भी उस कोर्स में चाहते हो, सो दैट वंस इट लॉन्चेस तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिले। एंड आपको जिस भी तरह की वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन ऑन माय वीडियो। एक्चुअली रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई मेक माय वीडियोस बेस्ड ऑन द प्रीवियस वीडियोस कमेंट, एंड इट ऑल्सो बूस्ट मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड डोंट रिमेंबर कि मैं कोर्स बना रहा हूँ, तो आप उसके लिए कमेंट करना कि आपको क्या क्या चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनल रोबोटिक्स का जो कोर्स होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अकेडमिक वाले से वो बहुत डिफरेंस रहेगा कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, एक्चुअल आर्किटेक्चर्स कैसे बनते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दैट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।